Hello learners, welcome back to our channel. My name is Gurveen and I'll be teaching you English literacy. The topic of this video is past tense. This is the second video in our tenses series. So if you haven't watched our introduction to tenses and simple present tense and present continuous tense, so please do watch that. The link is in the bio. Moving on, what is past tense? पास्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम बीते हुए कल की बात करते हैं. Those actions that take place in the past come under the category of past tense. We will cover two of the forms of past tense today, that is simple past tense and past continuous tense. Starting with simple past tense, what is simple past tense? In simple past tense, we talk about those actions that have happened in the past, right? वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन. सिंपल पास्ट टेंस में हम वो वाले एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि बीते हुए कल में हो चुके हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आई एट एन एप्पल. टेंस का मतलब है कि मैंने आज सुबह एक एप्पल खाया. तो ये एक्शन हम कर चुके हैं बीते हुए कल में. आज सुबह मतलब वो टाइम गुजर चुका है. Okay. So in simple past tense, those changes are that we use the second form of the action word. That is the past form of the action word. Mostly when we convert an action word from its first form to the second, we add d, ed or ied to it to change its form. ज़्यादातर हम जब भी एक एक्शन वर्ड की फॉर्म चेंज करते हैं फर्स्ट टू सेकेंड से, हम उसमें डी, ईडी या फिर आईईडी लगा देते हैं ताकि वो पास्ट टेंस में बदल जाए. फॉर एग्जाम्पल, डांस बिकम्स डांस्ड, स्वीप बिकम्स स्वीप्ड. Now we have to see when do we add d, ed and ied. When the action word ends with an e, we use d. We just add d to the word. For example, inquire. So the word inquire ends with an e. Hence, to change its form to the past tense, we will only add a d at the end of it. So then it becomes inquired. हम d तब यूज करते हैं जब भी कोई वर्ड e से खत्म होता है, जैसे कि inquire. Alright? When an action word does not end with an e, we use ed. That is, we add an ed to it to change its form. For example, cook. Cook becomes cooked in its past tense. Now, we use ied when the word ends with a y. हम ied तब यूज करते हैं जब भी कोई action word y से खत्म होता है, जैसे कि apply. अप्लाई वाई से खत्म होता है, तो उसको पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं आईईडी. द वर्ड बिकम्स अप्लाइड. ऑलराइट, हम इनके कुछ और एग्जांपल्स देखें तो डांस एंड्स विद अ ई, सो वी विल ओनली ऐड अ डी टू इट, सो इट विल बिकम डांस्ड. स्वीप एंड्स विद अ पी, सो वी विल ऐड ईडी टू इट, हेंस इट बिकम्स स्वीप्ड. क्राई एंड्स विद अ वाई, तो हम इसमें लगाएंगे आईईडी, which will become cried. Alright, you can try this technique with n number of words, but now we will learn about those words that completely change their form when we are changing them from present to the past tense. Starting with bring. जब हम bring की second form की बात करते हैं तो वो बन जाता है brought. Same goes for buy. Buy becomes bought in its second form. Some other words can be swim, swam, catch, caught, sit, sat, eat, ate, make, made, go, gone या फिर went. तो ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे. अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी फॉर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, जैसे कि वो फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म में सेम रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पुट, शट, शेड, कट, हर्ट. तो ये सारे वर्ड्स पास्ट और प्रेजेंट में दोनों में सेम रहते हैं. Alright, that is, you don't change them when you're using them in the past tense. I hope this is clear. Now we move on to a few sentences of simple past tense. First, I worked hard. How do we know it's a simple past sentence? Well, we have used the second form of the action word here, that is worked. Alright? अगर हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में चेंज करें तो ये बन जाएगा I work hard. We know कि वर्क को पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए उसके आगे ed लगाना होता है. Alright?
The next sentence is I brought the vegetables yesterday. मैं कल सब्जियां लेके आई. यहाँ पे action word हमारा brought है. Alright. Next sentence is they ate it all. उन्होंने सब खा लिया. So that was simple past tense. If you have any questions regarding it, please ask them in the comment section below. Alright. Now we come on to past continuous tense. In past continuous tense, we talk about an action that is taking place in the past. Past continuous tense में हम उस action की बात करते हैं जो कि बीते हुए कल में चल रहा है. Now I have to make this very clear कि past continuous tense में जो भी action चल रहा होता है वो past में ही खत्म हो चुका है और present में नहीं चल रहा. Okay? But हम उस action के बारे में तब बात करते हैं जब वो चल रहा है पास्ट में. ओके, कंफ्यूज मत होइएगा. ऑलराइट, सिंपल पास्ट टेंस तब यूज करते हैं जब एक्शन खत्म हो चुका है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम तब यूज करते हैं जब वो एक्शन पास्ट में चल रहा है. हम उसकी बात तब कर रहे हैं जब वो पास्ट में चल रहा है. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की इक्वेशन हो जाती है वॉज या वर्ड प्लस एक्शन वर्ड एंड प्लस आईएनजी. हमने ये सीखा था कि कॉन्टिन्यूस में चाहे वो कोई भी टेंस है, कॉन्टिन्यूस में हम आईएनजी लगाते हैं एक्शन वर्ड के साथ, ये दिखाने के लिए कि वो एक्शन अभी चल रहा है या किसी भी टेंस में किसी भी टाइम में चल रहा है. ओके, सो ये इक्वेशन हमारी बनी वॉज वर्ड प्लस एक्शन वर्ड प्लस आईएनजी. वॉज हम सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं और वर हम प्लूरल प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं. बट यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन आती है कि हम यू के साथ भी वर यूज करते हैं. सो दिस मीन्स दैट ही शी इट आई के साथ वी यूज वॉज एंड यू वी दे के साथ वी यूज वर. Alright, please make sure to use was or were whenever you're using a past continuous tense. Now let's see a few examples of past continuous tense. I was watching TV. मैं टीवी देख रही थी. She was eating. वो खाना खा रही थी. Raj was dancing when I entered the room. अब यहाँ पे मैंने बताया कि राज डांस कर रहा था जब मैं कमरे में गई. Alright, तो ये एक्शन पास्ट में हो रहा था. They were fighting the entire night. वो पूरी रात लड़ते रहे. इस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए कि मैंने आपको एक एक्शन के बारे में बताया जो पूरी रात चल रहा था, इसीलिए हमने वहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया और सिंपल पास्ट टेंस यूज नहीं किया. अगर मुझे इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता तो मैं लिखती दे फॉट ऑल नाइट. फाइट का पास्ट फॉर्म हो जाता है फॉट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस बन जाता है दे फॉट ऑल नाइट. वो पूरी रात लड़े. तो ये फर्क होता है सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में. डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू ऑफ देम. दे आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस. हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तब यूज करते हैं जब होते हैं कि वो एक्शन उस टाइम चल रहा था, वो एक्टिविटी उस टाइम चल रही थी. जबकि सिंपल पास्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक्टिविटी के खत्म होने का बताना होता है. ओके, so that was all for today. Now we will do a quick revision. What do you mean by past tense? Past मतलब बीता हुआ कल, और past tense में हम उन actions के बारे में बात करते हैं जो past में खत्म हो चुके हैं. We learned about simple past tense. हम simple past tense में action word की second form use करते हैं. हमने action word की second form देखी. हमने उनके types देखे कि हम कैसे उनको change कर सकते हैं. एक type हो जाता है by adding the d, ed और ied. एक टाइप होता है जिसमें वो वर्ड्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और एक टाइप वो भी होता है जिसमें वो बिल्कुल चेंज नहीं होते. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की इक्वेशन हो जाती है वॉज वर प्लस एक्शन वर्ड प्लस आईएनजी. हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा, हमने इन दोनों के डिफरेंट यूजेस देखे, हमने एग्जाम्पल्स देखे. If you have any questions or anything, if anything is not clear, please ask them in the comment section below. And support us by following us on various social media handles. Like and subscribe our channel. That was it for today. I will see you in the next one. Goodbye.